All right, let's move to next unit, that is thermodynamic relations. Uh, we will shortly see that what is the motivation of reading this chapter and what are interesting things in this unit. But before that, I just want to discuss the mathematical prerequisites. These mathematical prerequisites are highly important because without this you won't be able to comprehend this chapter properly. You will be like lost in throughout the chapter because math, it's very mathematical chapter, and on top of that mathematics is there, but you need to make intuition of that mathematics, what that mathematics is telling you. Okay, so that's why this chapter becomes little bit more important because maths will communicate you physics. Okay, so let's start with the mathematical prerequisites. So the first one is that I have already written the things, I just want to copy and paste here. A fundamental theorem in partial differential calculus. So we will not see the thorough derivation of this theorem, but we will use the result directly. Okay, so if f of xy is a function, f is a function that is depending on two independent variables x and y. Okay, then d of f, this is the total differential. This is the total differential of this function f of xy. And what does this total differential of this function represent? This represent that how this function will change if we change x by infinitesimal amount dx and y by infinitesimal amount dy. Okay, when we change the independent variable x and y by infinitesimal amount, how the function f of xy will respond. Okay, this is the meaning of the total differential. And mathematically d of f, okay, mathematically how is it given? Mathematically this d of f is nothing but the rate of change of x in x direction, sorry, the rate of change of function in x direction while keeping y constant into the change in x, plus the rate of change of function in y direction keeping x constant into change in y direction. So this is the total differential mathematically. The definition of total differential mathematically is given in this way. Fine, it is too easy to remember कि पहले रेट ऑफ चेंज लिखना है, उसको अमाउंट ऑफ चेंज से मल्टीप्लाई कर देना है. सिमिलरली इन द वाई डायरेक्शन, एंड remember the variables can be more than two also, right? It can be n number of variables, and this definition will keep on this derivation, sorry, this definition will work. Okay, you just have to you just have to extend this definition to the n number of variables when the variables are more than two. Suppose if there are three variables f, x, y and z, so suppose there is a function g that depends on three variables. In that case d of g is nothing but del g by del x, पहले वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज कीपिंग वाई एंड जेड कांस्टेंट into rate of into change in dx plus rate of change of function with respect to y keeping x and z constant into change in y plus rate of change of function with respect to z in z direction keeping y and x constant into dz, like this. Okay, so this is how you can find the change in the function d and g. Okay, many times we don't write this thing in the this thing, this constant thing, na, sorry, this thing we don't write many times, this y, this x. We know that these things are constant, but yeah, it's your choice. Okay, I think this theorem
what this theorem means, at least it is clear. From where this theorem is coming, that is not the concern of this lecture, because we are just going to use the results of this theorem. Okay, so now if you see, if there is only one variable, सपोज x, तो ये हमारा वही वाला केस हो जाता है जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं इन लोअर क्लासेस, दैट इज df विल बिकम जस्ट del f बाई del x इंटू dx. यही यहाँ पर ही पूरा हमारा रिजल्ट मिल जाएगा. ये तो है ही नहीं, y तो है ही नहीं. तो इफ़ यू डिवाइड बोथ साइड बाई x dx, सॉरी df बाई dx, then this is equal to nothing but this thing, and ये तो हम this is what we get the result. So it means that this general formula is consistent with the our known results, right? वहाँ पर भी तो ये जो डेरिवेटिव, ये क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ f with respect to x is nothing but change in f divided by change in x. So it is consistent. Consistent with single variable differentials. Okay, fine. So this was the first thing in the mathematics, mathematical preliminaries I wanted to discuss with you. The next one is, in the mathematical preliminaries I want to discuss, the second thing is perfect differential. Perfect differentials, or many people call it with this name also, exact differential. Exact differential. First of all, you should not be afraid of the word differential. हाँ, differential का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है. मतलब कोई फंक्शन है, अगर उसके आगे d लग गया है, df लगा हुआ दिखा है, यानी कि किसी भी फंक्शन का इन्फिनिटेसिमल चेंज इज कॉल्ड डिफरेंशियल. ओके, पहले तो ये पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल वर्ड का मीनिंग क्या है. the infinitesimal change of any function is called differential of that function. Okay, fine. तो हम एक थोड़ा एग्जांपल लेके समझेंगे इसको. इमेजिन, ओके, let f of xy is equal to x square y. Okay, this is my function. Then differential of this function df is given by above, and the formula we have written above, that is del f by del x into dx plus del f by del y into dy. So what will be the value of this thing? Del f by del x is nothing but keeping y constant, it is 2xy into dx plus del f by del y is x square and dy, right? This is the df. df is this. I hope this thing is clear. So हमने बोला कि this df is differential, right? And the value of this differential is this. Okay, but कौन से डिफरेंशियल को हम एग्जैक्ट बोलेंगे और कौन से डिफरेंशियल को एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे? सो उसका डिस्टिंक्शन कैसे करें? उसका डिस्टिंक्शन ऐसे करेंगे. कैसे? ए डिफरेंशियल, पहले मैं एक तुम्हें अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, मैथमेटिकल डेफिनेशन बाद में आएगी उसकी, बट इंट्यूशन के थ्रू कैसे चीज़ों को देख करके उस पर नज़रें टिका करके हम बता सकते हैं कि यार ये डिफरेंशियल है या नहीं है, या नॉट एग्जैक्टली, बट बता नहीं सकते, बट हम थोड़ा सा फील ले सकते हैं उस चीज़ को, उस चीज़ की. सो ए डिफरेंशियल इज एग्जैक्ट स्लैश परफेक्ट, क्योंकि दो नाम हैं इसके, दैट
successfully came from a single पेरेंट फंक्शन। ये क्या बोल रहे हो सर आप? ये क्या डेफिनेशन है इसकी? पेरेंट फंक्शन, व्हाट डज इट मीन? ओके, लेट्स सी व्हाट डज इट मीन। अगर ये जो डिफरेंशियल की जो वैल्यू तुम्हारे पास है, अगर तुम ये दिखा दो, ये प्रूव कर दो कि ये जो डिफरेंशियल है ये किसी ऐसे फंक्शन से आया हुआ है, तो इसका मतलब कि ये एक सिंगल फंक्शन से आया हुआ है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट डिफरेंशियल होगा। और क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही अज्यूम किया था कि एक सिंगल फंक्शन है और उस फंक्शन से ये आया हुआ है, तो ऑफकोर्स दिस डी एफ इज़ परफेक्ट। आई होप ये चीज़ अभी क्लियर नहीं होगी, बट थोड़ा सा सब्र रखो। तो हियर डी एफ इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल। क्यों एग्जैक्ट डिफरेंशियल? बिकॉज it came from f of x y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। तो बात ये है, पूरा माजरा ये है कि डिफरेंशियल को देख करके, डिफरेंशियल की वैल्यू को देख करके क्या तुम एक ऐसा फंक्शन ढूंढ सकते हो, सिंगल पेरेंट फंक्शन, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सिंगल पेरेंट फंक्शन। सिंगल पेरेंट फंक्शन ढूंढ सकते हो जिसका हम वो ऊपर डिफरेंशियल का फॉर्मूला लगा करके ये चीज़ हम ला सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो येस, दैट इज़ डिफरेंशियल, दैट डिफरेंशियल इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो ऑफकोर्स दैट इज़ नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो अभी यहाँ पर तो हमें पता था कि फंक्शन पहले क्या था, क्योंकि हमने स्टार्ट ही ऐसे किया था, ठीक है। तो अब मान लो कि हमें सिंपल यही दिया होता, ओके, फॉरगेट अबाउट दिस एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक। भूलने के लिए मुझे दूसरा पेज खोलना पड़ेगा, अदरवाइज तुम भूल नहीं पाओगे इसको। और पीछे वीडियो रिवाइंड मत करना। नाउ ओके, इससे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि थोड़ा, ताकि तुम्हारे नोट्स में ये थोड़ा चीज़ बना रहे। सिंस वी स्टार्टेड विथ एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइम्स वाई, हमने खुद ही एक फंक्शन बनाया और उसका डिफरेंशियल कर दिया, तो ऑफकोर्स फंक्शन तो एग्जिस्ट करता है ना, तभी तो उसका डिफरेंशियल कर पाए हम। देन ऑफकोर्स डी ऑफ एफ इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, क्योंकि हमने फंक्शन बनाया, खुद ही उसका डिफरेंशियल किया, तो ऑफकोर्स वो एग्जैक्ट तो हो गया ना बाबा। ओके, अब उसको भूल जाओ, पूरी कहानी को भूल जाओ। अब मैं तुमसे ये उल्टा क्वेश्चन पूछता हूँ, रिवर्स। व्हाट इफ समवन गिव्स यू डी ऑफ एफ, एक डिफरेंशियल, चलो डी ऑफ एफ भी नहीं बोलते इसको बोलते हैं डी ऑफ एच। डी ऑफ एच उसने दिया है 2xy dx प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। ये डिफरेंशियल है क्योंकि मैंने बोला ना कि किसी भी फंक्शन के आगे अगर डी लगा हो, पहचान की बात कर रहा हूँ मैं, या फिर इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे इसको, किसी भी फंक्शन का इन्फिनिटेसिमल चेंज अगर तुम्हें दिया हुआ हो, तो अब कैसे पता करें कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है या नहीं है? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ask that is there any function whose, और सिंगल पेरेंट, एनी सिंगल पेरेंट फंक्शन, मैंने ऊपर नाम दिया उसका, जहाँ से पेरेंट इसलिए बोला क्योंकि वहाँ से वो निकल के आ रहा है एनी सिंगल पेरेंट फंक्शन, is there any single parent function whose total
differential whose total differential is this thing, ये जो RHS में है आपका, ये हमें खुद से पूछना पड़ेगा। कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। इसके लिए लोगों ने बहुत सारा मेहनत किया हुआ है ताकि लोगों को इतना दिमाग ना लगाना पड़े खुद से। तो देयर इज़ ए प्रूफ और टेक्निक कि कैसे पता करें कि ये अब एग्जैक्ट है या नहीं है। तो अब यहाँ से एक टेस्ट निकल के आता है। For that we need to test this differential, इसको टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे टेस्ट करेंगे? उसको टेस्ट का तरीका ये है कि जो DH पहले जो डिफरेंशियल लिखा उसकी वैल्यू लिखो। डिफरेंशियल की वैल्यू ये है। ठीक, अब जो dx का कोफिशिएंट है, उसका पार्शियल डेरिवेशन करो y के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ऐसे याद रखना, कोफिशिएंट ऑफ dx। ठीक, लोग उसको m बोलते हैं, बहुत लिटरेचर में इसको m बोल देते हैं, इसको n बोल देते हैं, लेकिन उसको याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, लेकिन इसलिए मैं तुमको ऐसे समझा रहा हूँ। अगर x का कोफिशिएंट है तो डिफ्रेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में करना है, और y के कोफिशिएंट का डिफ्रेंशिएशन कोफिशिएंट ऑफ dy अगर है तो डिफ्रेंशिएशन तुम्हें x के रेस्पेक्ट में करना है। और अगर ये दोनों बराबर हो गए, इफ दिस टू थिंग्स आर इक्वल, देन yes, द कंक्लूजन इज दैट, टेस्ट की रिपोर्ट ये आएगी, yes there exists a पेरेंट फंक्शन, एक पेरेंट फंक्शन एग्जिस्ट करता है जिसका डिफरेंशियल, टोटल डिफरेंशियल इस डिफरेंशियल के बराबर होगा। और अगर ऐसा होता है तो हमने क्या बोला, हेंस डिफरेंशियल इज एग्जैक्ट। ओके, आई होप थिंग्स आर क्लियर टिल नाउ। फाइन, नाउ अगर इस चीज़ को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, और यही इसी का एग्जांपल लेते हैं, राइट, जो हमने एग्जांपल लिया था ये वाला, स्टार्टिंग में हमने फंक्शन लिया था कुछ, और हमने बोला कि वो एग्जैक्ट है क्योंकि हमने फंक्शन ले लिया था, लेकिन सपोज कर लो हमें नहीं पता कि फंक्शन क्या था। तो लेट्स यूज दिस DH इक्वल टू 2xy dx प्लस x स्क्वायर dy। सो टेस्ट इज दैट डेल ऑफ 2xy बाई डेल y, क्योंकि dx का कोफिशिएंट है, डेल ऑफ x क्योंकि y का कोफिशिएंट है। तो ये निकल के क्या आया, y के पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं तो y के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो x कांस्टेंट होगा, तो दिस विल बी 2y। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x है तो ये 2x, और ये 2x होगा, तो ये इक्वल आ गया। हेंस दिस DH इक्वल टू, यानी कि ये जो है ये जो डिफरेंशियल है, अगर DH को भी हटा दो, ये जो डिफरेंशियल, ये भी अपने आप में इसको भी डिफरेंशियल बोल सकते हो। हेंस दिस डिफरेंशियल इज एग्जैक्ट, और हमें पता था कि ये एग्जैक्ट है, पहले भी पता था हमने, क्योंकि हमने स्टार्टिंग ही कर दी थी फंक्शन से। कहाँ से स्टार्ट कर दी थी हमने फंक्शन से? ये यहाँ से स्टार्ट करी थी। ठीक है, और इसका उल्टा, अगर ये तुम्हारा इक्वल ना हुआ, जो ये टेस्ट है, अगर ये टेस्ट फेल हो गया, यानी कि इफ दिस थिंग इज नॉट इक्वल, तो उस केस में दिस इज कॉल्ड इनएग्जैक्ट।
इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। ठीक है, सो समझ में आ गया होगा आई फील। और इसका मतलब ये होगा कि देयर इज़ नो पेरेंट फंक्शन नाउ। इनएग्जैक्ट का मतलब ये है कि देयर एग्जिस्ट नो पेरेंट फंक्शन। हालांकि ऊपर लिखा था मैंने देयर एग्जिस्ट नो, मतलब ऐसा है कि कोई भी फंक्शन ले लो तुम, उसका टोटल डेरिवेटिव करोगे, टोटल डिफरेंशियल करोगे ये फॉर्मूला यूज़ करके, स्टार्टिंग का फॉर्मूला यूज़ करके, तो वहाँ तक कभी नहीं पहुँच सकते हो तुम। कोई भी फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट करता नहीं है दुनिया में जो उस डिफरेंशियल तक तुम्हें ले जा सके। इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल की ये डेफिनेशन हो गई। ठीक है, तो अगर एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, शायद ये तुम्हारे सारे अभी तक अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन बचा हुआ है तो मे बी ये तुम्हें ये लाइन तुम्हें इस कन्फ्यूजन से बाहर निकाल देगी। तो सो द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जैक्ट एंड इनएग्जैक्ट differential only matters only when you have expression like this। और इसको देसी तरीके में लिखना चाहें तो कोफिशिएंट ऑफ dx टाइम्स dx प्लस कोफिशिएंट ऑफ dy टाइम्स dy। ठीक है, तो अगर तुम्हारे सामने ऐसी कोई चीज़ आ गई, कोई ऐसी बला आ गई, तब ही एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट की बात करेंगे हम। क्योंकि अगर तुम्हें फंक्शन पहले से पता है मतलब बात ये कि अदरवाइज इफ यू ऑलरेडी हैव एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, फंक्शन की फॉर्म तुम्हें पता हो, मान लो तुम्हें फंक्शन की फॉर्म मैं दे रहा हूँ साइन एक्स वाई प्लस एक्सपोनेंशियल एक्स बाई वाई, सपोज ऐसा कुछ फॉर्म है। इफ़ यू ऑलरेडी हैव एफ ऑफ एक्स वाई वैल्यू, देन इसका जो डी एफ निकल के आएगा, जो फॉर्मूला हमने ऊपर यूज़ किया है फंडामेंटल थ्योरम, देन डी एफ डिफरेंशियल इज ऑफकोर्स एग्जैक्ट, राइट, क्योंकि ये फंक्शन तुम्हें पहले से पता है, इज ऑफकोर्स एग्जैक्ट। तो अब जब फंक्शन की फॉर्म पता ही है तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। लेकिन अगर जब ये ऐसा कुछ दे दिया हमें कि कोफिशिएंट है उसके बाद डी एक्स है, कोफिशिएंट उसके बाद डी वाई है, या फिर कोफिशिएंट है उसके बाद कैसे बात की जाए, ठीक। और ये वाली चीज़ मल्टीपल वेरिएबल के लिए होगी या नहीं होगी वो अभी हम बात नहीं करना चाहते उसके लिए। हमारे पूरे थर्मोडायनेमिक्स में दो ही वेरिएबल काम के हैं, तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट मल्टीपल वेरिएबल्स हियर। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास ऐसा एक्सप्रेशन आता है जीवन में, यानी कि तुम्हारे पास फंक्शन की कोई फंक्शन के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि यार ये इसका कोई सिंगल इसका कोई पेरेंट फंक्शन होगा या भी ये नहीं भी होगा, तो उस केस में देन व्हाट, उसको पता करने के लिए कि होगा या नहीं भी होगा, क्या होगा वो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा कंसर्न जस्ट ये कि होगा या नहीं होगा। देन you need to pass it through the test, जो टेस्ट हमने ऊपर लिखा हुआ है, दैट इज डेल m बाई डेल y इक्वल डेल m बाई डेल n बाई डेल x। इस टेस्ट के थ्रू हम पास करेंगे इसको।
टेस्ट पास कर दिया तो है, इसका एक पेरेंट है, इसका माई बाप है। अगर नहीं है, नहीं कर पाया पास, तो भाई ये तो लावारिस है। ओके फाइन, सो आई थिंक थिंग्स आर क्लियर टिल नाउ। लेकिन लेकिन हम पढ़ क्यों रहे हैं हम एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल? इसका मकसद क्या है? क्यों, आखिर क्यों इतनी मारामारी चल रही है? बात ये है कि अब इम्पोर्टेंट चीज़ आती है फिजिक्स। अभी यहाँ पर इंटर करेंगे फिजिक्स, दैट इज नाउ once we know if a differential is exact, then what next? अगर हमें पता चल गया तो अब आगे क्या करना है? व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस? इसका कोई फ़ायदा है? कोई कुछ ये हमें इंफॉर्मेशन देगा फिजिक्स के बारे में? बिल्कुल देगा। दैट इज yes, it has amazing implications। वो ये है, दैट इज इम्प्लीकेशन इसका ये निकल के आता है, integrating this डिफरेंशियल, इस डिफरेंशियल का अगर तुम इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। comes out to be independent of path taken and only depends on initial and final, और only depends on end points, सिंपली जहाँ से स्टार्ट किया और जहाँ पे ख़त्म किया, एंड्स एंड पॉइंट्स, ठीक है, इसी पर डिपेंड करता है। और ये तुम्हें कुछ याददाश्त दिला रहा है फिजिक्स के बारे में, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में? स्पेशली अभी हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा कुछ था क्या कहीं पे? यस, स्टेट फंक्शंस। हमारी बात समझ में? दिस रिमाइंड्स अस स्टेट फंक्शन, therefore the differential of state function is exact। ठीक है, इसीलिए जो इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है तो हम डी यू लिखते हैं, एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है तो हम डी एस लिखते हैं, लेकिन वर्क और हीट डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है, तो इसलिए हम डेल्टा लिखते थे, डेल्टा क्यू या डेल्टा डब्ल्यू। बट ये सबसे बेस्ट कन्वेंशन है, लेकिन हम डी क्यू भी लिख देते थे पहले, लेकिन उस टाइम पे हमें पता नहीं था ना, इसलिए लिखते थे। लेकिन अब से एक रेस्पॉन्सिबल फिजिसिस्ट के होने नाते यू शुड राइट दिस डेल्टा फॉर क्यू एंड डब्ल्यू। अभी हम प्रूव भी करेंगे कि भाई कैसे ये क्यू जो है वो इनएग्जैक्ट है और डब्ल्यू भी इनएग्जैक्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ आई थिंक तुम्हें समझ में आ गई होगी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक एग्जांपल की तरह दिखा देता हूँ कि यार ये कैसे वास्तव में पाथ पर डिपेंड नहीं करता। सेम एग्जांपल लेते हैं जो हमने ऊपर लिया था, एग्जांपल हमने जो लिया था ऊपर,
इसका वो डिफरेंशियल क्या था, डू यू रिमेंबर व्हाट वाज डिफरेंशियल? दैट वाज डी एफ इक्वल टू 2xy dy dx प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, ये तुम्हारा डिफरेंशियल था. नाउ आई वॉन्ट टू इंटीग्रेट इट, क्योंकि 2 डायमेंशन का इंटीग्रेशन है. आई डोंट नो यू हैव गॉन थ्रू दिस 2 डायमेंशन इंटीग्रेशन, बट इट इज़ ईजी. अगर नहीं भी देखा है तो तुम अभी देख सकते हो पहली बार. इंटीग्रेट इट फ्रॉम पॉइंट ए दैट इज़ 1,1 सपोज टू पॉइंट बी दैट इज़ 2,3. ठीक है, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं और हमने देखा था कि भाई ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल था. फाइन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल था. तो इसको थोड़ा सा 2 डायमेंशन में समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है. ये है x, ये है y. हमारे पास एक और हमें इंटीग्रेशन ऐसे करना है, डी एफ इक्वल टू ये हो जाएगा 2xy dx प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई. ठीक, अब बात ये है कि इंटीग्रेशन हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक करना है. पॉइंट ए है तुम्हारा 1,1, पॉइंट बी है तुम्हारा 2,3. ठीक, अब मुझे यहाँ से यहाँ जाना है तो मैं 50 तरीके से जा सकता हूँ, 1000 तरीके से जा सकता हूँ, करोड़ों तरीके से जा सकता हूँ. देयर आर इन्फिनिट वेज. ऐसे जाऊँ या ऐसे जाऊँ या ऐसे जाऊँ या सीधे चले जाऊँ, कोई मल्टीपल वेज है ना. ये है 2 डायमेंशन इंटीग्रेशन. 1 डायमेंशन में क्या होता है, जब तुम इंटीग्रेट करते थे बचपन में एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 1 to 2, तो वो एक ही डायमेंशन में था. तो मैं यहाँ से यहाँ तक जाना था. अगर यहाँ से यहाँ तक जाते थे तो तुम हमेशा इस पॉइंट को लेते थे तुम, क्योंकि तुम्हारी दुनिया ही 1 डायमेंशन है. तुम ऐसे नहीं जा सकते हो ना, ऐसे नहीं जा सकते. क्यों? क्योंकि ऐसे जाने के लिए तुम्हें 2 डायमेंशन चाहिए, क्योंकि तुम वाई में भी तुम चल रहे हो, एक्स में भी तुम चल रहे हो. लेकिन तुम्हारी जब दुनिया ही 1 डायमेंशन है तो यू डोंट हैव मल्टीपल चॉइस, यू हैव ओनली 1 चॉइस. गोइंग फ्रॉम 1 to 2 यू हैव ओनली 1 चॉइस. तो इसीलिए 1 डायमेंशन इंटीग्रेशन आसान होता है. 2 डायमेंशन में क्योंकि तुम्हारे पास 2 डायरेक्शन है, अब तुम यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए तुम दोनों तुम इन्फिनिट तरीके से जा सकते हो. तो मैं पहला पाथ लेता हूँ, पाथ 1. पाथ 1 को मैं ब्लैक से डिनोट करूँगा, ऐसे ऐसे जा रहा हूँ मैं. ठीक है, पहले स्ट्रेट एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा हूँ ऐसे, फिर वाई एक्सिस के पैरेलल जा रहा हूँ. ठीक है, ऐसे में जा रहा हूँ. तो पाथ 1 के थ्रू जो ये डी एफ है 1 लिख रहा हूँ मैं इसको. तो 2xy जब dx है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला पॉइंट तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2,1 है ना, क्योंकि x में 2 है, y में 1 है. तो इस पाथ में यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैं इस पाथ को मैं दो वेज में तोड़ सकता हूँ. चलो मैं इसको a बोला था हमने, इसको b बोला था क्वेश्चन में, इसको मैं c बोलता हूँ. तो जो 2xy dx है, इसको मैं a से लेके c तक करूँ पहले इंटीग्रेशन, फिर इसी 2xy dx को मैं कर सकता हूँ c से लेके b तक इंटीग्रेशन. ये तो पहला वाला हो गया. और जो दूसरा है इसी तरीके से एक्स स्क्वायर डी वाई, इसको भी मैं 2 तरीके से 2 पार्ट में तोड़ सकता हूँ, a से c प्लस c से b. ठीक हो गया. अब a से c को देखो तो इस पर y कांस्टेंट है. ठीक है, y की वैल्यू फिक्स है. तो इस पाथ पर dy क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि y फिक्स है तो चेंज इन y 0 हो जाएगा. तो a से लेके c तक dy 0 है, लेकिन यहाँ पर तो dx है, लेकिन ये dy 0 हो जाएगा, तो ये वाला इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. एंड a से लेके c तक y की वैल्यू फिक्स है. कितनी है y की वैल्यू फिक्स, 1. तो हम यहाँ पर y की वैल्यू 1 डाल सकते हैं. तो ये जो इंटीग्रेशन था इसमें 2 वेरिएबल थे ना, x और y, 2 डिफरेंट वेरिएबल थे. तो जैसे ही तुमने y की वैल्यू फिक्स रख दी यहाँ पर, तो ऑफकोर्स ये अब इंटीग्रेशन सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा. ये फ़ायदा, ये तरीका है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का, मल्टीपल इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का, मल्टीपल डायमेंशन के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का ये तरीका है. तो y की वैल्यू जब 1 पुट करी तो 2x बन जाएगा dx. और a से लेके c तक तुम्हारा लिमिट
कहाँ से कहाँ तक जा रहा है एक्स का, क्योंकि इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो इंटीग्रेशन इज गोइंग फ्रॉम 1 to 2, ठीक। प्लस नाउ ये सी से लेके बी तक की जर्नी में एक्स कांस्टेंट है, राइट, एक्स इज 2, तो डी एक्स कितना हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन ये 0 नहीं होगा, ये यहाँ पर x की वैल्यू अगर तुम रखोगे कितनी 2, तो सॉरी ये dy था, अगर तुम x की वैल्यू 2 रखोगे तो ये भी इंटीग्रेशन अब सिंगल वेरिएबल बन जाएगा, 2x तुम्हारा 4y बन जाएगा ये, और y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है तुम्हारा, y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है तुम्हारा 1 से लेके 3 तक, ठीक है, 1 से लेके 3 तक ऐसे। तो ना यू कैन इंटीग्रेट इट इजली, 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर और अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखोगे तो 3 आ जाएगा, प्लस 4y का इंटीग्रेशन 4y स्क्वायर बाई 2 दैट इज 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर की लिमिट रखोगे तो ये आ जाएगा, तो इट विल बी am I doing right? I don't think. Yes. नो नो नो, ये एक्स स्क्वायर था ना, ये एक्स स्क्वायर था, तो ये एक्स स्क्वायर था, तो एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी 2, तो ये 4 बन जाएगा, तो ये 4 इंटीग्रेशन से बाहर आएगा तो 4, और डी वाई हमारा y बन जाएगा, y का इंटीग्रेशन लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 - 1, तो दिस इज नथिंग बट 2, 4 and 2 8 11, तो ये हमारे इस पाथ के थ्रू वैल्यू आ गई 11। नाउ लेट्स डू द सेम थिंग बट द पाथ इज डिफरेंट नाउ, और हमारा एक्सपेक्टेड आंसर होना चाहिए क्या, सेम, दैट इज 11। लेट्स सी क्या ये काम करता है, हम सेम इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे जा रहे हैं, ए से लेके बी तक जा रहे हैं हम ऐसे ही, बट बी कितना था तुम्हारा 2,3, लेकिन अभी हम ऐसे जाएंगे, कैसे जाएंगे, ऐसे, पहले हम जाएंगे ए से डी एंड डी से बी, तो दिस डी एफ अलॉन्ग पाथ 2 is nothing but df from a to d plus df from d to b, ठीक है। हम पहले सॉल्व करते हैं, फर्स्ट सॉल्व हम कर लेते हैं df from a to d, ये आसान रहेगा। df की वैल्यू क्या थी हमारी, एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy dx, ये है हमारी वैल्यू a से लेके d तक। नाउ इफ यू सी ए से लेके डी तक जाने में तुम्हारा एक्स कांस्टेंट है, दैट इज एक्स इक्वल टू 1, तो डी एक्स इक्वल टू 0, तो डी एक्स वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन क्या बनेगा डी एक्स स्क्वायर डी वाई, और सिंस एक्स की वैल्यू 1 है तो ये सिंपली डी वाई बन जाएगा, और वाई कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में, डी के क्या कोऑर्डिनेट है, कैन यू टेल मी, यस 1,3, तो ऑफकोर्स दिस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन विल बी वाई फ्रॉम 1 to 3, this is 2, okay। now सेकेंड पार्ट इंटीग्रेशन का फ्रॉम डी टू बी, डी टू बी अगर तुम देखोगे, इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ, एंड नाउ दिस इज फ्रॉम डी टू बी, नाउ योर वाई इज कॉन्स्टेंट ना, वाई इज कॉन्स्टेंट एंड वाई की वैल्यू कितनी है 3, तो डी वाई 0, अगर वाई की वैल्यू 3 है और डी वाई 0 है तो पहला टर्म 0 हो जाएगा, और 2xy विल बिकम 6x dx, और ये इंटीग्रेशन ये बन जाएगा, और x इज चेंजिंग फ्रॉम 1 to 3, तो ये 3 देन 9 - 1, ठीक है, यही होगा। ओके, बट I think x is going from 1 to 2 not 3, है ना, तो ये 4 बनेगा,
ये जो x है ये 1 से लेकर 2 तो जा रहा है, तो नाउ दिस इज नथिंग बट 3 9। सो ये इंटीग्रेशन क्या आएगा तुम्हारा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ फ्रॉम पाथ टू इज नथिंग बट 2 + 9 दैट इज 11। पहले भी 11 था। इतना ही नहीं, नॉट जस्ट 2 पाथ, अगर तुम ये पहले हमने ऐसे लिया था, अभी हमने ऐसे ले लिया, कितने भी पाथ ले लो तुम, द आंसर विल बी सेम। तो ये हमने एक एग्जांपल के थ्रू देख लिया कि कितने भी तरीके से तुम जा सकते हो वहाँ इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, आंसर सेम रहेगा। और मज़ेदार बात क्या है बताऊँ, तुम्हें आंसर निकालने की ज़रूरत भी नहीं थी ऐसे, तो आंसर जो होगा वो सिंपली क्या होगा पता है यू विल बी अमेज्ड। तो मैं इस चीज़ को समझने मतलब देखने के बाद तुम्हें थोड़ा झटका लगना चाहिए। तो इफ़ डी एफ इज़ एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है, एक बार ये कन्फर्म हो गया कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, देन इंटीग्रेशन ऑफ this integration of it depends only on the endpoints, and value is you don't have to calculate value by this very long method. Value is nothing but df is integrating from a to b is nothing but, तुम्हें फंक्शन पता है ना, उसका पेरेंट फंक्शन पता है ना, पेरेंट फंक्शन के आर्गुमेंट में अपर लिमिट डालो, पेरेंट फंक्शन के आर्गुमेंट में लोअर लिमिट डालो, दिस इज द आंसर। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आ जाएगा। चलें देखें इसको एक बार इसी एग्जांपल में। पेरेंट एग्जांपल हमने इस एक ही एग्जांपल को मैं स्टार्टिंग से ले रहा हूँ, स्टार्टिंग के 5 मिनट में जो मैंने डी एफ लिखा रखा था उसी का ही एग्जांपल मैंने पूरे लेक्चर में लिया हुआ है ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे। इसका पेरेंट फंक्शन क्या था, डू यू रिमेंबर, x² y, ठीक है। हमने इंटीग्रेशन किया था कहाँ से कहाँ तक, a से लेके b तक, और a क्या था और b क्या था, इनकी वैल्यू क्या थी, और a और b की ये थी, ठीक है। इसको नीचे कॉपी कर लेते हैं एक बार। दिस वाज a, दिस वाज b, ठीक है, साथ में ले लेते हैं। तो हमने क्या बोला, ये क्लेम हमारा ये है, ये नथिंग बट f एट a माइनस f एट b, नो f एट b माइनस f एट a, फाइनल माइनस इनिशियल है ना, a से हम b जा रहे हैं। ये डायरेक्शन का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं हम, ठीक। तो f हमारा क्या है, x² y है, x² y है ना, x² y में पहले तुम b x की वैल्यू 1 रखनी है, y की वैल्यू 1 रखनी है, सॉरी b का मतलब x2 है, y3 है, माइनस x² y में x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। सो लेट्स पुट इट डाउन, x की वैल्यू 2 रखोगे तो 4, y की वैल्यू 3 रखोगे तो 3, 4 and 3 12, माइनस x की वैल्यू यहाँ पर 1 and 1 तो 1 11। यही आया था ऊपर आंसर यही आया था आंसर। तो इतनी मज़ेदार चीज़ है, अगर चीज़ें डिफरेंशियल एग्जैक्ट हो जाता है तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। इसीलिए हम इसके पीछे पड़े थे आधा या 1 घंटे से इसके पीछे हम पड़े हुए हैं। अब क्वेश्चन ये होगा कि यार अगर डिफरेंशियल में पता है तो ये कैसे निकालें, वो भी एक प्रोसेस है, बट यू डोंट नीड टू लर्न दैट थिंग बिकॉज काम नहीं आएगी तुम्हारी, बट हाँ कर सकते हो। अगर तुमने मैथ्स में कोई कोर्स किया होता मे बी यू कुड हैव लर्न दिस थिंग्स, बट या मे बी अगर आगे लेक्चर्स में कहीं पर काम आता है तो आई विल एक्सप्लेन दैट कि हाउ टू गो फ्रॉम हियर टू हियर, बट दैट इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट। ओके, नाउ वी हैव सीन कि क्या एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, कैसे पता करना है कि डिफरेंशियल एग्जैक्ट है नहीं है।
अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो गया तो उसका क्या फ़ायदा होता है, क्या फ़ायदा नहीं होता है। फ़ायदा ये होता है कि भाई इंटीग्रेशन पाथ से इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो पाथ की हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट की लोड है, बस उसी की ज़रूरत है, उसकी ही हमें कंसर्न है। अगर वो पता है तो सब कुछ पता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पता है तो सब कुछ पता है। और सारे स्टेट फंक्शन एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्यों होते हैं हमें वो भी समझ में आ गया। नाउ वी वांट टू प्रूव फ्यू थिंग्स कि प्रूव दैट work done is not exact differential। तो ये हमारा क्वेश्चन है काइंड ऑफ, ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। तो ध्यान रखना वर्क डन इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इसका मतलब ये है कि वर्क डन ये जो हम यहाँ निकालते हैं थर्मोडाइनमिक्स में W=PdV, यही वाला नो, कोई भी वर्क डन फिजिक्स के किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो मैकेनिकल वर्क हो या फिर ये थर्मोडाइनमिक्स के थ्रू जो वर्क निकल के आ रहा है वो वाला वर्क हो, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई वर्क निकल के आ रहा है वो वाला वर्क हो। तो वर्क इन जनरल एक इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, वो हम प्रूफ तो हम थर्मोडाइनमिक्स के थ्रू ही करेंगे अभी, लेकिन ये जो रिजल्ट निकल के आएगा वो रिजल्ट पूरे के पूरे फिजिक्स में यूज होता है। ओके, तो उसके लिए हम एक सिस्टम लेते हैं। imagine a system of an ideal gas, ठीक, in a cylinder, piston then this system can be described by P and V, है ना, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन के थ्रू हम तीसरा वेरिएबल निकाल सकते हैं PV=nRT से। तो दो ही इंडिपेंडेंट यहाँ पर दो ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, डिस्क्राइब्ड बाय टू वेरिएबल्स P and V, ठीक हो गया। तो बना भी देते हैं पिस्टन सिलेंडर वाला सीन। वाह क्या मेरा ऐसे बनता है भाई, आई डोंट केयर मच। ठीक है, इसके अंदर गैस थी हमारी, ज़रूरत है क्या इसकी बनाने की, नहीं है ना। समझ तो गए तुम बहुत, अब तो सेमेस्टर के एंड पे आ गए, इतना तो समझ में आता ही होगा। सो द इन्फिनिटेसिमल amount of वर्क डन, क्योंकि हम इन्फिनिटेसिमल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें डिफरेंशियल निकालना है ना, डिफरेंशियल एग्जैक्ट है कि इनएग्जैक्ट है, तो उसके लिए इन्फिनिटेसिमल ही काम करना पड़ेगा। वर्क डन बाय ए गैस व्हेन dV amount of volume is changed, ठीक है। इट इज़ गिवन बाय हमने पहले पढ़ा था, इट इज़ गिवन बाय PdV, दैट इज DW इज नथिंग बट PdV। ये हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ है, लेक्चर देख लो वाला कैसे आता है ये, बट अभी हम सिंपल रिजल्ट यूज़ करेंगे। तो हमने क्या बोला था कि जो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने थे हमारे यहाँ पर, दो हैं P और V।
लेकिन हमारा एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है यहाँ पर डिफरेंशियल में। जैसे हमने वहाँ पर देखा था एफ ऑफ एक्स वाई जो था, वहाँ पर हमारे पास एक कोफिशिएंट था, फिर डी एक्स था, प्लस कोफिशिएंट था डी वाई था। यहाँ पर हमारा वेरिएबल वी है और पी है। यहाँ पर डी वी आ गया बट उसका कोफिशिएंट आ गया, लेकिन डी पी है ही नहीं। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डी वी। लेकिन डी पी होना चाहिए था कुछ, लेकिन है ही नहीं, तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट कितना है, 0 है। सिंपल, यही तो हुआ इसका मतलब, क्योंकि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है भाई साहब यहाँ पर, और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो कुछ ना कुछ तो उसका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। 0 भी एक कंट्रीब्यूशन दिखता है इक्वेशन में, तो इसका मतलब क्या हुआ। अब हमें पता करना है कि भाई ये डिफरेंशियल है एग्जैक्ट या नहीं। क्या बोला था हमने, कैसे पता करेंगे, पास थ्रू दिस डिफरेंशियल बाय द पास थ्रू इट बाय द टेस्ट, पास इट थ्रू द टेस्ट। कौन सा टेस्ट था हमारा, डेल बाई डेल ऑफ जिस डिफरेंशियल का कोफिशिएंट है उसके ऑपोजिट से डिफ्रेंशिएट करना था ना, ऐसे, इक्वल टू डेल बाई डेल पी ऑफ 0। ठीक है, कोफिशिएंट जिसका था उसकी ऑपोजिट से डिफरेंशियल करना था। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो टेस्ट यहाँ पे लिख देना टेस्ट। और अगर ज़्यादा ही तुम्हें कन्फ्यूजन हो रहा है तो यू कैन यूज़ द एम और एन। ठीक है, ओके, लेट मी यूज़ दैट इज ओनली। तो यहाँ पर एम ऑफ पी वी होगा, एक्स वाई नहीं, यहाँ पर एक्स का मतलब यहाँ पर पी है मान लो, और वाई का मतलब वी है मान लो। तो एम ऑफ पी वी क्या है, यहाँ पर पी है, और एन ऑफ पी वी क्या है, यहाँ पर 0 है। तो डेल एम बाई डेल वी शुड इज नथिंग बट डेल एम बाई डेल वी क्या है यहाँ पर, डेल बाई डेल वी ऑफ पी, सॉरी ये डेल एम बाई डेल वी होगा पी। तो ये कितना है यहाँ पर 1, और डेल एन बाई डेल वी कितना है यहाँ पर 0। क्लियरली डेल एम बाई डेल पी इज नॉट इक्वल टू डेल एन बाई डेल वी। टेस्ट फिर हो गया, implies that dw is not perfect or exact differential. I hope things are clear. इसीलिए मैंने तेरे को बोला था, तुम्हें बोला था कि ये जो फॉर्मूला है ना एम और एन वाला, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, कौन सा एम माने कौन सा पी वी एन माने। तो बेहतर तरीका यह है याद करने का कि जिस वेरिएबल का, जिस डिफरेंशियल का कोफिशिएंट है ना, जिस डिफरेंशियल का कोफिशिएंट है उसके ऑपोजिट से डिफरेंशिएट करना पड़ता है। डी का कोफिशिएंट था तो पी से डिफरेंशिएट करना पड़ता था, राइट। ऊपर भी क्या लिखा था हमने, टेस्ट में क्या लिखा था, ये और ये डिफरेंट होने चाहिए। अगर ये वाई है तो ये एक्स, ये वाई है तो ये एक्स। ठीक है, ये ऑपोजिट में होने चाहिए थे, याद रखने का तरीका है वो। तो अगर ये डी वी है, अगर तुम डी वी से कर रहे हो तो इसका जो कोफिशिएंट है उसके ऑपोजिट से तुम्हें यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। v का ऑपोजिट p है, यहाँ पर p कन्फ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि p ही इसका कोफिशिएंट आ गया है। तो डेल p बाई डेल p होगा और डेल 0 बाई डेल v होगा। ठीक है, ओके, मैं बहुत ज़्यादा एग्जिजेट कर रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। तो इसका मतलब ये है, इट मीन्स दैट there is no parent function, there is no parent function like this w that is function of pv। ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट।
which correspond to which represent total work. ठीक है, I hope you have understood my point. Same thing, next thing, that prove that heat exchanged और जस्ट हीट, अगर ज़्यादा वो प्रिसाइज नहीं बोला है, प्रूव दैट हीट एक्सचेंज इज और जस्ट हीट इज इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल. तो इसको भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं. टेक an ideal gas, 1 mole of ideal gas, take 1 mole of ideal gas, that is n equal to 1. Now by first law of thermodynamics, dq इक्वल टू du प्लस dw, और आइडियल गैस है तो यू नो हाउ डू यू राइट दिस du इक्वल टू ncv dt, but n equal to 1 here, so you can simply write cv dt plus dw is infinitesimal work pdv for ideal gas. This is dq. Now again we need to pass it through the test, but the thing is that यहाँ पर अगर तुम देखो there are 3 independent variables. कौन कौन से? टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम. मतलब 3 वेरिएबल्स दिख रहे हैं यहाँ पर, बट हमें 2 वेरिएबल चाहिए. तो वी नीड टू एलिमिनेट दिस p फ्रॉम हियर. ठीक है, क्योंकि या इसके साथ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं. cv के मतलब यहाँ पर तो कांस्टेंट ही है ना, dt के पास कोई वेरिएबल है नहीं. तो dv के पास वेरिएबल है लेकिन वो p है, तो हमें 3 वेरिएबल से 2 वेरिएबल लाना पड़ेगा. सिंस pv इक्वल टू आर टी, एन इक्वल टू 1 है तो आर टी सिंपली इट गिव्स दैट p इक्वल टू आर टी बाई वी. देयरफॉर it implies that dq becomes cv dt plus rt by v into dv. ये बन गया. अब इसको कंपेयर करो, कंपेयर विथ df इक्वल टू mxy dy dx प्लस mnxy dy. 2 वेरिएबल हैं एक्स वाई और यहाँ पर टी वी है. तो ऑफकोर्स पास टेस्ट क्या है हमें यहाँ पर, मुझे तो वही पसंद आता है भाई कि जो जिसका कोफिशिएंट है उसके ऑपोजिट से डिफरेंशियल करो. कोफिशिएंट है सी वी और किसका कोफिशिएंट है, डी टी का कोफिशिएंट. तो डी टी का ऑपोजिट कौन सा वेरिएबल है यहाँ पर, डी वी, तो उसे डिफरेंशिएट करो. तो ये सी वी तो कांस्टेंट होता है, वो तो 0 हो गया. और सिमिलरली डी बाई डी टी ऑफ दिस आर टी बाई वी, ये तो ये आर कांस्टेंट, वी कांस्टेंट क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है, और टी का डिफरेंशिएशन 1. तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू डेल बाई डेल टी ऑफ आर टी बाई वी. देयरफॉर फेल्ड, टेस्ट इज फेल्ड. इसका मतलब ये होगा डी क्यू इज इनएग्जैक्ट.
डिफरेंशियल, ठीक है। एंड इसका मीनिंग क्या होगा? मीन्स इट मीन्स नो पेरेंट हीट फंक्शन q t of v exists, q of t v exists। कोई भी फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता मार्केट में। तो ये तो मैथमेटिकल प्रूफ हो गई, ठीक है। लेकिन अगर तूने एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स किए होंगे कभी, अगर कोई सिस्टम पॉइंट ए से स्टेट 2 में जा रहा है, तो इफ़ यू टेक फर्स्ट सपोज दिस इज पी वी डायग्राम, एंड नाउ इफ यू वांट टू टेक टू पाथ्स, फर्स्ट पाथ इज आइसोकोरिक देन आइसोबारिक, ठीक है, ये वाला पाथ यूज़ करो। और अगर उल्टा पाथ दूसरा पाथ यूज़ करो, पहले आइसोबेरिक देन आइसोकोरिक। तो इन दोनों ये पाथ डिफरेंट हैं वैसे, क्योंकि पहले आपस में ये इंटरचेंज नहीं। तो पाथ ए से जो हीट एक्सचेंज होगा और पाथ बी से जो हीट एक्सचेंज होगा वो डिफरेंट होता है। पता नहीं तो न्यूमेरिकल किए नहीं किए इसे, आई डोंट नो, यू नीड टू टेल मी। अगर ये डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए ये वाला पाथ, ये और ओरिजिन से जा रहा हो, तो P इज प्रोपोर्शनल टू V है, ठीक है। P इज प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि P/V वाला पाथ मान लो, जहाँ पर P/V कांस्टेंट है। तो इस पाथ से जो होगा वो वर्क अलग निकलता है और हीट अलग निकलती है। If you had ever gone through these kind of situation, these kind of numericals, you would have seen, you must have seen कि यार आंसर अलग अलग आता था Q और W का, लेकिन U का आंसर डेल्टा U हमेशा सेम आता होगा क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, लेकिन Q चेंज, हीट एक्सचेंज डिफरेंट आता होगा, वर्क डन डिफरेंट आता होगा। वो हमने न्यूमेरिकल के थ्रू भी देखा था, देख सकते हो अगर नहीं देखा है तो लेकिन हमने मैथमेटिकली एक रिगरस तरीके से भी प्रूफ कर लिया कि भाई वर्क एंड हीट आर इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। सो ये थोड़ा बहुत मैथमेटिकल प्रिलिमिनरीज थे। आई होप दिस वाज क्लियर टू यू, ये इम्पोर्टेंट था। एक आधी और बचते हैं प्रिलिमिनरीज, आफ्टर दैट वी विल गो थ्रू द मेन टॉपिक ऑफ दिस, मेन कंटेंट ऑफ दिस यूनिट। ओके, सो या बाय।